Yeah, as I was discussing with Aruna ji, कि लोगों को रात में नींद क्यों नहीं आती है, you know? तो शी हैड अ वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन. उन्होंने कहा कि बच्चों को जनरली ये तकलीफ नहीं होती है, ये तकलीफ मिडिल एजड लोगों को ज्यादा होती है. 40, 50, 60, that is the age where people have difficulty. Second, she said लोगों को टेंशन होता है, और ऑफिस का टेंशन, घर का टेंशन, और किसी काम का टेंशन, एक्सपेक्टेशंस नहीं मीट करने का टेंशन. तो ये टेंशन के कारण जो रात की नींद है वो उनकी डिस्टर्ब होने लगती है. So do you agree with it, Sonia or Nirmala ji, कि tension is the main reason because of which we suffer from shortage of sleep, lack of sleep, or sleep goes away for a long time? Yes, sir. Okay. Yes, sir. I mean, I think everything comes down to overthinking. When the mind overthinks, when it's not at peace, definitely the impact is on the body. Then it's not able to rest. Therefore, it is. I mean, we are awakened most of the time. So, I would just go a step further. It's not only that we are not able to sleep at night. Even the daytime, there's some sort of a restlessness in case mind is not at peace, or it's overthinking, or there is a tension, or there is a stress, because every time it comes back to the same thing, that problem we are struggling with. Okay. So yeah, that's the main cause. Okay, so then tell me, how do we put the mind to peace? How do we put the mind at rest? How do we calm the mind? Sir, I have two, three things. Yeah. 2-3 things which help me. One is definitely I try to stay silent. Okay. So I like to stay at a place where I'm not talking, and I just observe my thought, that what is it which is bothering me. And so when once I'm sure of that particular thought, that this is what is troubling me, I just try to just go a little more deeper into it, that why is it bothering me, that problem, is it caused by me, or is it my reaction, or is it the problem caused by someone else. So in case it is the problem caused by someone else, I really can't do anything about it. But if it is my reaction, so I just try to accept it, that okay, such and such thing happened, and now it's fine, it's gone, I can't do anything about it, it's fine. The moment I accept, my mind is at peace. So my acceptance helps me. My silent time, sitting quietly, observing myself, my thoughts, that helps me. And I'm pretty okay with this particular technique of mine. But then I have a question. If you are following more or less the same technique, that is working for you virtually every time, the question is, why does it happen in the first place? I mean, why does it happen? Yes. Yeah, when you are accepting later on, so why not accept it the first time when it happens, or first time not allow it to come inside your head? Why not keep it out? Yeah. So that is, I think, the lack of awareness in the beginning. That earlier we are maybe in a mode of that things should happen my way, or I'm the one who's trying to or able to control the situation, those kind of things. When it happens, when it comes into your, and maybe it's out of ego, so it's a mix of lot of things inside. So I think you are right, it is a mix of lot of things. And let us look at what Patanjali talks about. Okay. Patanjali is in the first chapter on Samadhi. He says, yoga, chitta vritti nirodha. That is how he defines yoga. So he says, you at a smaller level can be part of something big, something far higher than you, only when your mind is at rest. That means if you have to elevate yourself to go higher, your mind has to be at peace. Yeah. And the reverse then also is true. If the mind is not at peace,
then you don't go higher, you go lower. Yeah. Are you getting me? When the mind Yes. is still, when the mind is calm, when the mind is silent, when there are no waves in the ocean of the mind, the ocean is silent. There is no tsunami out there. There are no waves. There is no motion. There is calmness. There is peace. Then you actually get elevated. You actually reach to the next higher level. Next higher level in terms of knowledge, in terms of power, in terms of intuition, in terms of happiness, in virtually all respects, in terms of health. So the moment you are calm and peace and at a state of silence, then you will find you are getting elevated. The more you are silent, the more you are calm, the more you get elevated. And more there are the waves of these thoughts coming in inside your chitta, inside your mind, creating motion, vibrations, changes, fluctuations, modifications, the more troubled you will become, the more difficulty you will face. Your power level will go down. You will become weak mentally, physically. Your knowledge levels will go down. That means your application of intelligence will go down. Your application of wisdom will go down. You will be less happy. You will have sadness, sorrow, stress, anger. All these things will start coming in. So then the primary question is, if it has all got to do with thoughts in my mind, then number one is, how do I control thoughts? That is what entire yoga sadhana is about, how to control thoughts, how to avoid the modification of the mind because of thoughts, how to prevent the changes in my mind because of incoming thoughts. How can my mind be stable? How can my mind be absolutely cool, calm, unaffected by whatever is happening outside? The outer must not come inside without my permission. Okay, so that is the basic purpose here. So once you become aware, it is all about thoughts. It is all about what I am allowing in. And once it is coming in, what it is doing inside me, that decides my inner state. And if my inner state is highly disturbed, then it affects my sleep. If my inner state is slightly disturbed, I might doze off to sleep. But if my inner state is going through a tsunami, I might lie awake all through the night. Even after 1-2 hours of lying down on the bed, sleep will not come. So sleep is directly connected to the state of mind. State of mind is directly connected to your thought management ability. And your thought management ability is directly connected to what you know about thoughts. What do you know about how to control them? What do you know about what causes thoughts in the first place? So we will cover these perspectives broadly. But let me tell you, as per Patanjali, as per yoga, there are 3 ways by which thoughts can be controlled, thoughts can be subdued, thoughts can be put to rest. The first one is Vairagya. Vairagya means you are detached. You are not stuck up to what the senses are telling you. You are free of what the senses are bringing in as information from the world outside. Say, for instance, I like rasgullas. Okay. So if I see a rasgulla and somebody is offering it to me, do I fall into that temptation, or am I able to control myself and not take that rasgulla? So each point where the outer world is coming to you through the sense, through the 5 senses, what is the amount of control are you employing at those 5 doors? That is one important thing which has to be learned. It is a kind of discipline. It can be built up with time. The more you practice, the more powerful you become. Then you will find that the outer world cannot enter you at its own whims and fancies. Just because somebody outside has given you an outburst
does not mean you have to take it in. You can stop it outside. You can avoid its entry. Second is, even if something is coming in outside, from outside, say somebody has given you 100 galis, you have stopped 90 of them, but 10 of them have gone inside. And now they're doing their work. So how to put them to rest? So once something has come inside, then the only way to bring them to rest, to put them to stop, is to practice concentration. Why concentration? Because concentration allows you to pick one thought out of various thoughts, and you hold on to that one thought for some amount of time. So whatever thought you hold on, whatever thought you give energy, that thought grows in you. That thought multiplies in you. That thought gets amplified in you. So supposing I am feeling fearful inside because of something which has come from outside. So I definitely do not want fear to grow in me, but it has come. So now what do I do? So now you think of courage and you concentrate on courage and you amplify that thought of courage inside your mind, inside your head. Within a few seconds, within probably a minute or so, the fear element will go down and the courage element will go up in you. So whenever any thought is disturbing you, you can always give power to the opposite thought. Choose that opposite thought, give it that power. And when you give it that power, you will find it grows. Say for instance, I have, let me put some weight to it, just to give an example. Supposing I have 100 grams of fear in me and 10 grams of courage because of something which has happened outside. Somebody has scolded me, threatened me, or put some pressure on me. I might lose my job, or I have not completed my assignment on time and there is pressure, or I have a bank loan to pay and the money is not there. Anything which is bringing in pressure to the mind, fear to the mind, a kind of a scare to the mind. Now, your being in scare will deteriorate the situation. It will not improve the situation. So the only thing to do is say that fear is 100 grams. So you pick up the thought of courage. You pick up the thought of fearlessness and you start thinking about it. When you start thinking about a thought, that thought will grow in you. That thought will magnify in you. That thought will take on more and more energy, more and more power, because attention gives power. Concentration gives power. So then you are able to raise it from say 0 grams to probably 100 grams first. Now there will be no emotion. Both of them are balanced. Then you raise it further. You take it to something like 500 grams, 1 kg. So then the fear element will get subdued completely and courage will take over in the mind. And now your mind will think in the constructive direction. Now your mind will think of solutions. Now your mind will be focusing on options, what can work, how to make it work, how to make it better, So we can turn around our minds. We can twist our mind in any direction. We can amplify our mind in any direction, provided we know how to concentrate. So people who are practicing meditation, people who are practicing concentration, or people who are very focused in their work, they have this ability to turn around the mind, to take it in the constructive direction from a destructive direction. So concentration is the second thing. First is detachment, vairagya, staying away from what the others are giving you. So vairagya means no color. The world is full of colors. The world will put its colors on you. Okay, if you have a partner, your partner will try to put his likings and dislikings onto you. If you're staying in a family, your father, mother are there, they would like to put their thought patterns onto you. They will put their color onto you. If you have children and they are, say, either teenagers or grown further, they would like to impress their thought processes onto you, what they want to do in life,
and you might be justifying something else. So not to take on the color is vairagya. Not to get attached to what somebody else is pushing onto you is vairagya. Not giving in to your temptations is vairagya. So it is all about thought management. Okay, one is at the inner outer stage, other is in the inner stage. Once it has come in, then you can pick an opposite thought, magnify it, grow it, and take it further up. Is this clear so far? Or if you have any questions, you can ask. Clear, To me sir. it's clear. To me it's clear. Okay. Anybody else? चंद्रशेखर जी, आपको क्लियर हो? आपने लेट ज्वाइन किया एक्चुअली. आप माइक को ऑन करिए प्लीज. यस सर, थोड़ा लेट किया, अभी जस्ट अभी किया है सर. ओके. तो हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि हम लोग को नींद जो हमारी डिस्टर्ब होती है वो टेंशन से डिस्टर्ब होती है. करेक्ट. और टेंशन के जो कारण हैं वो अधिकतर हम देखते हैं कि बाहर से आ जाते हैं. वर्क प्लेस पे, रिलेशनशिप्स में, या एक्सपेक्टेशंस के कारण, या कुछ प्रेशर्स में, बाहर के प्रेशर हमारे अंदर आ जाते हैं जिसको हमको काउंटर करने के लिए करना पड़ता है. तो ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि योग के हिसाब से योग ये कहता है कि चित्त के वृत्तियों को कंट्रोल करना. वृत्ति मतलब थॉट्स. वृत्ति मतलब थॉट्स जो है हमारे माइंड में फ्लक्चुएशन ले आते हैं, बदलाव ले आते हैं, उनकी परिस्थिति बदल लेते हैं माइंड की थॉट्स. तो ये जो थॉट्स हैं इनको हम रोकें, इनको हम कंट्रोल करें, इनको हम कमजोर करें, इनको हम सुला दें, इनको हम रोक दें, बंद कर दें. यस. तो जितना हम अपने थॉट्स को कंट्रोल कर पाते हैं, रोक पाते हैं, सुला पाते हैं, चुप कर पाते हैं, शांत कर पाते हैं, उतना ही हमारा मन साइलेंट हो जाता है, शांत हो जाता है. अब सवाल उठता है कि जब हमारा मन साइलेंट हो जाता है, शांत हो जाता है, तो हमको फायदा क्या होता है? सबसे पहला फायदा हमको ये होता है कि हमारे अंदर में जो ज्ञान का लेवल है, जो इंटेलिजेंस है, जो नॉलेज है, जो विजडम है, वो हायर पावर पे ऑपरेट करने लगती है. और हमारे मन में अगर शांति नहीं है, हमारे मन में अगर उथल पुथल है, हमको गुस्सा आ रहा है, हमको भय हो रहा है, हम दुख में हैं, तो हमारे इंटेलिजेंस लेवल, नॉलेज लेवल, विजडम लेवल ये नीचे काम करते हैं और ये हमको और दिक्कत देने लगते हैं. तो सबसे पहले मन को शांत करना जरूरी है ताकि हमारी सोच हमारे कंट्रोल में आए, इंटेलिजेंस हमारी अपर लेवल पे ऑपरेट करे, हायर नॉलेज हमारे अंदर काम करे और हायर विजडम हमारे अंदर ऑपरेट करे. सेकंड क्या होता है कि जो हमारा पावर है, हमारी जो शक्ति है एज एन इंडिविजुअल, हमारा जो कॉन्फिडेंस है, हमारा जो विल पावर है, जितने भी हमारे पावर से संबंधित जो भी क्वालिटीज हैं, ये जब हम शांत रहते हैं तब ये पावर पीक पे रहता है. ये कभी भी निकल के काम कर सकता है. लेकिन जब आप अशांत रहते हैं, दुख में रहते हैं, क्रोध में रहते हैं, भय में रहते हैं, तो ये कमजोर पड़ जाता है पावर और हमको ये नीचे खींचने लगता है. और जितना हमको नीचे खींचेगा उतना हमारे लिए काम बढ़ जाता है, उतना हमारे लिए मुश्किल हो जाती है. और होता क्या है कि सिर्फ ये जो रिवर्स डायरेक्शन में जो हम मूव करने लगते हैं मेंटली, वो उसका असर सिर्फ हम पे नहीं पड़ता है, हमारे इमीडिएट सराउंडिंग्स पे भी पड़ता है. मान लीजिए हमारे कोई फैमिली मेंबर है, उन पे भी पड़ता है. हमारे घर का जो वाइब्रेशन है, जो वातावरण है, वो भी थोड़ा डाउन हो जाता है. हमारे घर में कोई दूसरे जानवर भी अगर हैं तो उनके भी साइकोलॉजी पे उसका इम्पैक्ट आ जाता है. तो ये असर सिर्फ लोकल नहीं है हम पे, ये थोड़ा सा स्प्रेड आउट हो जाता है. अच्छा, हमारी हेल्थ, जब हम शांत हैं, खुशी में हैं, तो हमारी हेल्थ जो है वो बेटर परफॉर्म करती है. बॉडी की एफिशिएंसी हाई रहती है, बॉडी में जो सेल्स हैं वो पावर में रहते हैं, वो हेल्दी रहते हैं. लेकिन जब हम डाउन चले जाते हैं तो बॉडी में हमारा रेजिस्टेंस घटने लगता है, हमारी इम्यूनिटी गिरने लगती है, हमारे अंदर बीमारियां बढ़ने लगती है, हेल्थ पे असर पड़ता है, डिजीजेस जल्दी अंदर आने लगती हैं. तो इसलिए थॉट्स पे कंट्रोल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है.
और जब आपका मन शांत है तब आपके मन में आनंद आ सकता है, लेकिन जब आपका मन दुखी है तो वहां कोई आनंद नहीं आएगा, आपका और परेशानी बढ़ेगी। तो ये सब बातों को नजर रखते हुए योग में पतंजलि बोले कि थॉट्स को कंट्रोल करने के लिए 3 तरीके हैं जो योग बेसिकली मानता है, और वही प्रैक्टिस अगर हम करें, किसी भी रूप में करें, तो हमको उसके रिजल्ट मिलते हैं। पहला है डिटैचमेंट, वैराग्य। हमको बाहर के साथ अपने चित्त को, अपने मन को कम जोड़ना है। जहां हमारी मर्जी हो वहां हम जोड़ेंगे, जबरदस्ती किसी के कहने पे नहीं जोड़ेंगे, या जबरदस्ती कोई हमको गाली दे दे तो हम उसके साथ रिएक्ट कर जाए, वैसा नहीं करेंगे। हम अपने चित्त को, अपने मन को अपने बस में रखेंगे, अपने कंट्रोल में रखेंगे। जहां हमको चाहिए वहां जोड़ेंगे, लगाएंगे, जहां नहीं चाहिए वहां से खींच लेंगे वापस। अगर हम आपके पास आए हैं, कुछ अच्छी आशा से आए हैं, और आप हमारे साथ गलत तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, तो हम शांति से अपना मन वापस खींच लेंगे। हो सकता है शरीर वहीं खड़ा हो, लेकिन मन को प्रेम पूर्वक खींच लेंगे वापस। ओके, तो ये एबिलिटी, ये वैराग्य है, मन को बाहर ले जाना और उसको वापस लेके आना जब भी जरूरत पड़े। ये प्रैक्टिस से आता है, ये सीखना पड़ता है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी एबिलिटी बढ़ेगी। जितनी आपकी एबिलिटी बढ़ेगी उतनी आपकी बाहर के संसार से, वर्ल्ड से, बाहर के वस्तुओं से, बाहर से लोगों से क्या आपका इंटरेक्शन हो रहा है वो आपके कंट्रोल में आने लगेगा। बिल्कुल, आप बेबस नहीं रहेंगे। बिल्कुल, हाँ, आप अपने अपने मालिक रहेंगे, अपने अपने मन के, अपने विचारों के मालिक रहेंगे। दूसरा जो है वो है कॉन्सेंट्रेशन, या किसी के यहाँ से आ रहा है साउंड। ओके, तो कॉन्सेंट्रेशन में क्या होता है कि हम अपने मन को एक थॉट पे लाके रोक देते हैं, होल्ड करते हैं एक थॉट पे। तो ये भी एक बहुत लाभदायक क्वालिटी है, स्किल है, और ये सबको आनी चाहिए। जितना आप अपने मन को एक जगह पे लाके रोक पाएंगे, उतना आप अपने अंदर की पूरी अवस्था को कंट्रोल कर पाएंगे। एक सरल तरीका बताता हूं, सरल एग्जाम्पल लेता हूं कि मान लीजिए मेरे मन में भय आ गया, और किसी भी कारण से आ गया, या तो अंदर से अपने आप पैदा होके आ गया, या तो बाहर से घुस के आ गया, और हम कंट्रोल नहीं कर पाए उसका आना। अब वो आ गया है और वो अपना काम कर रहा है, तो उसको हम कंट्रोल कैसे करेंगे? उसको कंट्रोल करने के लिए हमको अपने मन को वहां से हटाना पड़ेगा। जितना हम भय के बारे में सोचेंगे उतना भय जो है बढ़ेगा, उतने हम भयभीत होंगे, और जितना हम भय के बारे में कम सोचेंगे उतना भय घटने लगेगा। क्योंकि जहां भी हम अटेंशन देते हैं वहां एनर्जी जाती है, और जहां भी एनर्जी जाती है वो ग्रो कर जाता है। तो हमको भय को बढ़ाना नहीं है, हमको भय को घटाना है। तो पहले तो हम अपने थॉट को भय से हटाएंगे, खींचेंगे वापस। और खींच के कहाँ लगाएंगे? खींचने से तो हमने उसको कमजोर करना चालू कर दिया, लेकिन हमको उसको पूरी तरह खत्म कर देना है। तो क्या करेंगे? हम उसको करेज के पास लगा लेंगे, एक थॉट पैदा करेंगे करेज का, हिम्मत का और वीरता का, और उसके साथ उसको लगा देंगे अपने मन को, और वहां पे एनर्जी देंगे, उसके बारे में सोचेंगे, देखो मैं कितना वीर हूं, मैंने अपने पास जीवन में क्या क्या वीरताएं की हैं। तो उस तरह के वीरता के ऊपर में जब हम विचार देना चालू करेंगे तो वीरता बढ़ने लगेगी। और वो जो भय था उस पर हमने अपना अटेंशन, अपना ध्यान खींच लिया है वापस, तो घट रही है। तो धीरे धीरे क्या होगा कि जो हिम्मत है, जो करेज है, जो वीरता है वो बढ़ने लगेगी, और जो भय है वो घट के खत्म होने लगेगा, मरने लगेगा वो। क्योंकि अब हम उस विचार को, उन सेल्स को, ना तो हम खाना दे रहे हैं, ना तो हम खून पहुंचा रहे हैं, ना तो हम ऑक्सीजन दे रहे हैं, ना हम उसको एनर्जाइज कर रहे हैं। तो वो धीरे धीरे डिके हो रहा है, वो धीरे धीरे वो थॉट्स डिकम्पोज हो रहे हैं, और वो कमजोर पड़ रहा है, वो मर रहा है। और हम जिसको बढ़ाना चाहते हैं अपने अंदर, उसको हम खुराक दे रहे हैं अटेंशन की, उसके बारे में हम सोच रहे हैं, तो वो एनर्जी ले रहा है, वो बढ़ रहा है। तो कुछ समय के बाद क्या होगा, मन के अंदर से भय पूरी तरह निकल जाएगा। मन के अंदर आपको एक वीरता का एहसास होने लगेगा, एक वीर रस बहने लगेगा। तो ये आप ही ने किया है ना।
अभी जैसे मान लीजिए लेडीज लोग खाना बनाती हैं और देखती हैं कि नमक कम है तो नमक डाल देती हैं। उसी प्रकार आपको देखना है कि अरे भय आ गया है तो आपको हिम्मत ज्यादा डाल देना है, वीरता ज्यादा डाल देनी है, तो भय अपने आप कम हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से हमारा माइंड को हम जब यूज करना चालू करते हैं तब हम कंट्रोल लेना चालू करते हैं, और जब कंट्रोल लेना चालू करते हैं माइंड के अंदर तो हम बाहर पे कंट्रोल लेना चालू करते हैं, क्योंकि माइंड के अंदर से ही बाहर बन रहा है। आप लोगों को एक बात दिमाग में रखनी चाहिए कि हमारे पास, हम जो इंसान हैं, हमारे पास 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं। ज्ञान इंद्रियां हमको बाहर की इंफॉर्मेशन, बाहर के ज्ञान, नॉलेज को अंदर लेके आती हैं, और कर्म इंद्रियां जो है वो बाहर ज्ञान नहीं लेके जाती हैं, वो बाहर कर्म लेके जाती हैं और कर्म करती हैं। तो जो भी ज्ञान हमारे अंदर आ जाता है वो फिर कर्म करना चालू करता है, एक्शन मोड में आ जाता है। तो अगर हम, हमारे अंदर अगर गलत ज्ञान आ गया है, उसको सबड्यू करके खत्म करते हैं, तो हमारा बाहर का जो काम हो रहा होता है वो गलत होना बंद हो जाता है, वो सही होने लगता है। अगर हम अंदर जो ज्ञान ले रहे हैं उसको हाई से हाई वैल्यू का लेंगे तो हमारा जो बाहर कर्म होगा, कार्य होगा, एक्शन होगा, वो हाई से हाई वैल्यू पे चला जाएगा। अगर हमको बाहर अच्छा ज्ञान नहीं मिल रहा है, हो सकता है कभी कभी ऐसे परिस्थिति में हम लोग हों कि हमारे आसपास जो लोग हैं वो ऐसी बातें कर रहे हैं, ऐसे चीजों में लगे हुए हैं जो कि हमको अच्छा मार्ग नहीं दे रही हैं, अच्छा ज्ञान नहीं दे रही हैं, तो भी हम अपने आप, अपने अंदर, अपने मन से अच्छे ज्ञान को पैदा कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। जब हम उसको पैदा करते हैं, बड़ा करते हैं, एनर्जाइज करते हैं, होल्ड करते हैं, तो उसी के अनुसार फिर बाहर कर्म निकलने लगता है और वो एक्शन बाहर होने लगता है। तो बाहर चाहे जो भी हो, अंदर आपके मन को कौन कंट्रोल कर रहा है वो तय करता है कि बाहर क्या हो रहा है। अगर अंदर आप कंट्रोल कर रहे हैं तो बाहर भी आप कंट्रोल कर रहे हैं। अगर अंदर कोई और कंट्रोल कर रहा है तो बाहर भी वही कंट्रोल कर रहा है। ये बात क्लियर है सबको? हाँ, ओके। तो यहां तक किसी का कोई अगर प्रश्न हो तो आप पूछिए। आपने बताया, हो सकता है मेरे क्वेश्चन आपके अपने प्रोग्राम को डिस्टर्ब करे। नहीं बोलिए। मेरा एक डाउट था, आपने बताया भाई नींद नहीं आती आदमी को, हाँ, उसकी वजह उसके मन की कंडीशन है। हाँ, मगर कभी कभी ऐसे भी होता है कि भाई कंडीशन, एटमॉस्फेयर ऐसा रहे, भाई गर्मी है बहुत, फैन हाँ, नहीं चल रहा है, हाँ, या और कुछ डिस्कम्फर्ट है, हाँ, उसकी वजह से भी नींद नहीं आ सकती है। हाँ, तो ऑफ कोर्स दैट इज नॉट इंसोम्निया, वो तो अलग बात हो गई। मानिए भाई किसको, मेरे को कल सुबह 5 बजे उठना है, फ्लाइट पकड़नी है, कुछ भी करना है, हाँ, और मुझे आदत नहीं है, हाँ, तो उस रात को भी मेरे को नींद बरोबर नहीं आएगी। हाँ। सो व्हाट कुड बी द कॉज ऑफ दैट? नहीं देखिए, 2 चीजें हैं। वो अलग बात कर सकते हैं बाद में। हाँ, नहीं, 2 चीजें हैं। स्पीक अबाउट दिस लेटर। Okay, but what I'm trying to tell you is कि insomnia is a disorder which continues over a long period, है ना? कम से कम आप अगर 2 हफ्ता 3 हफ्ता नहीं सो पा रहे रात में रेगुलर, then it can be called insomnia. हाँ, I got it. हाँ, ये तो टेम्पररी कंडीशन है। हाँ, Yeah. true. Yeah, I got it. Thank you. Second, if you are not able to sleep because of external factors, right? कई बार क्या होता है कि आप जिस बेड में हैं उस बेड पे नहीं सो रहे हैं, दूसरे बेड पे सो रहे हैं, आपको डिस्कम्फर्ट है, तो आपका जो पिल्लो है वो चेंज हो गया, आपको डिस्कम्फर्ट है। एसी का जो टेम्परेचर है वो आपको सूट नहीं कर रहा है, कोई और साथ में सो रहा है उसको सूट कर रहा है, तो आपको डिस्कम्फर्ट है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, वी आर टॉकिंग अबाउट कि एज अ हैबिट, क्या होता है कि हम में से जो हमारे थॉट्स आते हैं और जो थॉट्स को हम मैनेज करते हैं, हम में से बहुत लोगों को पता नहीं है कि अपने थॉट्स को मैनेज कैसे करना है। कोई सिखाता नहीं है थॉट मैनेजमेंट, जबकि आपकी लाइफ थॉट्स के अराउंड ही बिल्टअप है, और नोबडी टीचेस यू कि थॉट आता कहां से है आपके अंदर, और वो थॉट को चेंज करने का तरीका क्या है, और थॉट को हायर क्वालिटी ऑफ थॉट ऑटोमेटिकली आपके अंदर आए,
वो भी किसी ने सिखाया नहीं। तो एक्चुअली क्या है कि हम जो इंसान हैं और हमारे अंदर 5 एसेंशियल चीजें हैं, मैं फिर से योग के बेसिस पे बोल रहा हूं, जिससे कि ये सारे कॉन्फ्लिक्ट पैदा होते हैं हमारे अंदर। तो इनको योग लैंग्वेज में क्लेश बोलते हैं। तो 5 प्रकार के क्लेश बताए गए हैं जो कि हम सब के अंदर है, इनहेरेंट। किसी ने कम कर दिए हैं उसको, किसी के बढ़ गए, बट क्लेश सबके अंदर है जो कि पेन पैदा, कॉन्फ्लिक्ट मतलब पेन पैदा करते हैं और दिक्कत पैदा करते हैं। तो सबसे पहले है जिसको बोलते हैं अविद्या। अविद्या मतलब बच्चा जब पैदा होता है तब तो उसको नॉलेज नहीं रहता है कि वो कौन है, क्या है। हम समझाते हैं कि तुम्हारा नाम संजय है, तुम हिंदू हो, तुम मेल हो, ये तुम्हारे पापा हैं, ये तुम्हारी माँ है। हम पूरा डेटा उसको फीड करते हैं और वो बच्चा इनोसेंस में सारा डेटा एज ट्रू लेके अपने अंदर डालता है और उसी के हिसाब से चलता है लाइफ लॉन्ग। लेकिन हम उसको ये नहीं बताते हैं, कंप्लीट नॉलेज नहीं देते हैं उसको इनकम्प्लीट नॉलेज देते हैं। तो वो जो इनकम्प्लीट नॉलेज है उसके पास, उस कारण से उसके लाइफ में दुख आता है, पेन आता है, सौरो आता है, कॉन्फ्लिक्ट आता है। अब हम क्यों नहीं दे पाते हैं वो नॉलेज? क्योंकि वो हमारे पास भी नहीं और हमारे स्कूल्स में भी नहीं है, हमारे कॉलेजेस में नहीं है, हमारे यूनिवर्सिटीज में नहीं है, हमारे वर्क प्लेस में नहीं है। सब लोग दुख एक्सपीरियंस करते हैं, सब लोग पेन एक्सपीरियंस करते हैं, सब लोग सॉरो, सैडनेस, कॉन्फ्लिक्ट, टेंशन, ये सब एक्सपीरियंस करते हैं। तो जब तक आप खोजेंगे नहीं वो लिटरेचर या वो लोग या वो सज्जन, वो आदमी जो कि लीस्ट अमाउंट ऑफ सॉरो में है, जो कि आनंद में है, और जब तक आप उससे सीखेंगे नहीं कि भैया तुम जो आनंद में हो कैसे हो, क्या किया है तुमने जो तुम आनंद में हो। तो योग कहता है कि 5 कारण हैं, उसका अगर आप निवारण कर लेते हैं तो यू विल फाइंड कि आप बिल्कुल ठीक हैं। पहला तो यू मस्ट सीक एन आंसर टू हु यू आर, आप कौन हैं और आप क्या कर रहे हैं। जब आपको ये समझ में आएगा कि आप शरीर नहीं हैं, आप मन नहीं है, आप इसके परे हैं, समथिंग अनचेंजेबल। और ये इसलिए नहीं बोलने के लिए, अभी जैसे मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं तो डेफिनेटली देयर इज समथिंग इन मी, सम एंटिटी इन मी जो देख रहा है, जो सुन रहा है, जो रिस्पॉन्ड कर रहा है। वो देखने, सुनने, रिस्पॉन्ड करने के लिए माइंड का प्रयोग कर रहा है और माइंड शरीर का प्रयोग कर रहा है और शरीर का प्रयोग करके बाहर दुनिया में बात आ रही है, बाहर दुनिया में आके आप तक जा रही है ना। आपके एंड पे भी वही हो रहा है, आपका शरीर पहले रिसीव कर रहा है, वो माइंड को दे रहा है। माइंड किसको दे रहा है? Who is watching this mind? Who is listening to this mind? तो वो जो एंटिटी है वो अनचेंजेबल है, लेकिन हमको उसका एहसास नहीं होता क्योंकि हम देखते हैं आसपास लोगों को एहसास नहीं है, इसलिए हमको भी एहसास नहीं होता है। जिस दिन हम देखेंगे आसपास के लोगों को एहसास हो रहा तो हमको भी होने लगेगा। अब हम देखते हैं आसपास सब कपड़े पहने घूम रहे हैं तो हम भी कपड़े पहने घूम रहे हैं। आसपास सब नंगे घूमेंगे तो हमको भी नंगा घूमने में कुछ नहीं है, हमको लगेगा वही सही है। कोई कपड़ा पहन के तब घूमेगा तो उस पर लोग हंसेंगे, क्या कपड़े पहन के आया, सब तो नंगे घूम रहे हैं। तो हम सब ये सोचते हैं कि हम मन और बॉडी के कॉम्बिनेशन है, और ये जो मीडिया है ये हमको सिखाती है यू नो कि दांतों को ठीक करने के लिए ब्रश करो, बाल काटो, प्रॉपर लिपस्टिक लगाओ, जैसे स्पेशली लेडीज को बॉडी के ऊपर बहुत कराते हैं। जिम का फंडा है, रनिंग करो, मैराथन दौड़ो, यू नो। तो बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं जो कि मार्केटिंग कंपनीज अपने प्रोडक्ट सेल करने के लिए करती हैं, लेकिन आपके अंदर एक मिथ बैठ जाता है कि आई एम दी बॉडी। अच्छा, आपसे पूछते हैं हु आर यू, हम बोलते हैं आई एम संजय मनसुखानी। अरे दैट इज अ नेम, ओके। और आई हम सोचते हैं ये शरीर ही आए है, क्योंकि अगर किसी कमरे में शरीर नहीं है तो लोग बोलते हैं संजय मनसुखानी इज नॉट हियर। आप समझ रहे हैं? तो ये मिसकंसेप्शंस है
क्योंकि हम लोग रियलिटी को रियलिटी के हिसाब से नहीं देख रहे, हम रियलिटी को शब्दों में देख रहे हैं, हम रियलिटी को मीनिंग्स में देख रहे हैं, हम रियलिटी को लैंग्वेज में देख रहे हैं, हम रियलिटी को लोगों के डिस्क्रिप्शन में देख रहे हैं, लेकिन रियलिटी में नहीं देख रहे। अभी मैं आपसे पूछूं कि आपको क्या दिख रहा है, हाँ, तो आप शब्दों का प्रयोग करेंगे, लेकिन आपकी आंख को शब्द नहीं मालूम है। आपकी आंख तो कैमरा की तरह फोटो खींच रही है, तो जो फोटो खींच रही है वो आपको दिख रहा है, शब्द तो आप डाल रहे हैं, आपका मन डाल रहा है। तो सिंपल चीज, देखने जैसे चीज में भी हम ओरिजिनली सोचते नहीं है, हम अपने शब्दों से डिस्क्राइब करना चालू करते हैं। अगर मैं किसी को दिखाऊं कि मान लीजिए ये क्या है, बोलेगा पेन है। अरे मेरे आंख को थोड़ा ना पेन दिख रहा है, ये तो पेन मैंने नाम दिया है, इसका समाज ने नाम दिया है। इंग्लिश में पेन बोलते हैं, हिंदी में कलम बोलते हैं, 100 भाषा दुनिया में तो 100 अलग चीज बोलते हैं, तो 100 आंखों को तो एक ही दिखना चाहिए ना। तो हम रियलिटी को एज इट इज नहीं देखते हैं, इसलिए फंसते जाते हैं। तो हमको ज्ञान नहीं है, इसलिए हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है कि मैं कौन हूं, मैं कौन सी मशीन हूं, मैं क्या कर रहा हूं यहां पर। जब आप ये अपने से क्वेश्चंस पूछने लगेंगे या जिनको उत्तर मालूम है उनके पास जाएंगे, तो आपका नॉलेज कंप्लीट होगा। जब आपका नॉलेज कंप्लीट होगा तब आपको एनलाइटनमेंट आएगा। जब आपके पास एनलाइटनमेंट आएगा तो आपके सारे सॉरोज चले जाएंगे, फियर्स चले जाएंगे, पेन चला जाएगा, क्योंकि आपको कंप्लीट नॉलेज आ गया। तो एक तरीका ये है, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगता है। दूसरा तरीका है पेन का जो कारण है वो है ईगो। हम सोचते हैं कि मैं हूं, क्योंकि मेरे पिता ने कहा कि तुम संजय हो, माँ ने कहा तुम संजय हो, नानी ने कहा तुम संजय हो, दादी ने कहा तुम संजय हो, भैया ने कहा तुम संजय हो, पति बोलता है तुम संजय हो, बेटा बोलता है तुम संजय हो। अब मैं कुछ और बोलूं तो बावरी हो जाऊंगी, बावरा हो जाऊं, तो मेरे को मानना पड़ता है। और फिर मैं उसी संजय के अराउंड स्टोरी बनाता हूं, मैं पात्र बनता हूं उस नाटक का, तो फंसता हूं। तो सेकेंड कॉन्फ्लिक्ट का कारण है पेन। पहले है लैक ऑफ नॉलेज, दूसरा है ईगो, ये पेन देता है। तीसरा है राग। राग मीन्स अट्रैक्शन। मेरे को कोई चीज, कोई वस्तु, कोई शरीर, कोई आदमी, कोई काम बहुत भा गया, मतलब लिमिट के बाहर पसंद आ गया, अब मैं चिपक गया उससे या चिपक गई उससे। और जीवन में सब चीज आपको हर समय नहीं मिल सकता, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, चेंज होगा, कम होगा, बढ़ेगा, क्योंकि ये बदलती हुई प्रकृति है, इसमें रजस है, इसमें कांस्टेंट चेंज है। तो आप ये सोच लेंगे कि जो चीज मेरे को पसंद है, बेहद पसंद है, वो हमेशा रहे, नहीं रहे। ना आपका शरीर रहेगा, ना आपकी नौकरी रहेगी, ना आपके पति रहेंगे, ना आपके माँ बाप रहेंगे, ना आपके बच्चे रहेंगे, ना आपका काम रहेगा। कोई भी चीज परमानेंट नहीं रहेगी। तो हमको एक्सेसिव अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। एक्सेसिव अट्रैक्शन होने से भी पेन होने लगता है, क्योंकि वो चीज चेंज होगी, मॉडिफाई होगी। इसी के साथ जुड़ा हुआ है रिपल्शन, अवर्शन। ये मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं, यू नो। अगर हम बोले कि मेरे को तो बस में ट्रैवल करना बिल्कुल पसंद नहीं, मैं तो गाड़ी के बिना चलती नहीं। आपके जीवन में परिस्थिति आएगी, कभी ना कभी आ सकती है कि आपको बस में ही ट्रैवल करना पड़ेगा 6 साल। मान लीजिए आप यहाँ से यूएसए चले गए, वहां पे टैक्सी में आप ट्रैवल नहीं कर सकते और आपको बस में ट्रैवल करना पड़ रहा है, क्या करेंगे आप? आपने कहा कि मेरे को तो खाना बनाना बिल्कुल पसंद नहीं, मेरे माँ ने भी नहीं सिखाया और मैं मर जाऊंगी लेकिन खाना नहीं बनाऊंगी। आपकी शादी हो गई किसी से जो कि मान लीजिए स्विट्जरलैंड में रहते हैं और वहां पे खाना आपको बनाना पड़ रहा है, तब क्या करेंगे? तो बहुत ज्यादा नफरत भी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा आकर्षण भी नहीं होना चाहिए, मॉडरेट होना चाहिए। ओके सर, इसका नाम क्या है? रिपल्शन हिंदी में क्या बोलते हैं? द्वेष। द्वेष। ओके, थैंक यू। राग, द्वेष। ओके, लास्ट है फियर। एक मानव को हमेशा भय होता है,
नेचुरल है। एक बच्चे को भी भय होता है, एक बच्चे को भी मृत्यु का भी भय होता है। उसने कभी मृत्यु शायद नहीं देखी हो जीवन में, वो नेचुरली है, जीन्स में आती है भय। तो ये भय से हम आसानी से मुक्ति नहीं पा सकते हैं। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों को भय होता है, अच्छे अच्छे हिम्मत करने वाले लोगों को भय होता है। तो ये भी हमारे जीवन में हमारे डिसीजंस तय करता है, और हमको किसी चीज में पेन देता है, किसी चीज में हैप्पीनेस देता है। तो ये पांच, ये हमारे कोर अंदर, डीप डाउन हमारे अंदर रहते हैं, बच्चे में एट बर्थ रहते हैं। ये बच्चे का फ्यूचर तय करते हैं, ये पांच। और इन्हीं पांच के अनुसार बच्चों के अंदर थॉट्स आते हैं। आपको कोई चीज पसंद है बहुत ज्यादा, तो उसका थॉट आपको आएगा, और कोई चीज से आपको नफरत है तो उसका थॉट आपको जल्दी नहीं आएगा। आपको किसी चीज का भय है तो वो भय बार बार आपके सामने आएगा। तो हमारे लाइफ थॉट्स तय करते हैं, हमारे थॉट्स हमारे ये क्लेश तय करते हैं। और हमारे ये क्लेश कहां से आते हैं? ये हिंदू धर्म में, योग में बोलते हैं पिछले जन्म से आते हैं। ये कैरी ओवर है। तो हम क्लेश को जितना कंट्रोल कर पाएंगे उतना बढ़िया है। क्लेश को कंट्रोल करने के लिए थॉट्स को कंट्रोल करना पड़ेगा। थॉट्स को कंट्रोल करने के लिए मैंने कहा था 3 तरीके हैं। मैंने आपको पहला बताया वैराग्य, कि कोई कलर में मत आओ, जो हो रहा है होने दो। अटैचमेंट ज्यादा मत रखो, डिटैच करने की एबिलिटी रखो, वापस खींचने की एबिलिटी रखो माइंड की। और सेकंड, कंसंट्रेशन की एबिलिटी, उसका अभ्यास होना चाहिए। इन सब का अभ्यास चाहिए। जैसे मान ली साइकिल चलाने के लिए आपको अभ्यास चाहिए, वैसे इसका भी अभ्यास चाहिए। तो अब आप ये देखेंगे कि तीसरा जो है, तीसरा बहुत पावरफुल मेथड है, और विश्व में सबसे पावरफुल माना जाता है, और अधिकतर लोग यूज करते हैं। इसको बोलते हैं ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान मतलब ईश्वर के प्रति समर्पण। जब आपका ईश्वर के प्रति समर्पण हो जाए, पूर्ण समर्पण हो जाए, कोई भी घटना घटेगी वो आपके अहंकार पे नहीं लगेगी। आप सोचेंगे कि ईश्वर ने किया, और वो जो कर रहा है अच्छा कर रहा है, जो आ रहा है ठीक है, जो जा रहा है ठीक है। तो अहंकार खत्म हो जाता है। दूसरा क्या होता है कि आप हर चीज को ईश्वर की मान लेते हैं, तो आपका राग द्वेष भी चला जाता है। तीसरा क्या होता है कि जहां पर आप ईश्वर को रखते हैं, जो कि ऑल पावरफुल है, ऑल माइटी है, तो आपके अंदर का जो भय है वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है, और आपके अंदर में एक शांति, एक सन्नाटा, एक कामनेस आने लगती है। और जैसे जैसे ये आती है, वैसे वैसे आप देखते हैं कि आपका ज्ञान बढ़ने लगता है, पावर बढ़ने लगता है, हेल्थ इंप्रूव होने लगता है, खुशी बढ़ने लगती है। ये सब क्वालिटीज अपने आप आपके अंदर में डेवलप होने लगती है। अब पतंजलि जो है, इन्होंने ईश्वर को कैसे डिफाइन किया है। योग में प्रैक्टिकली हर चीज डिफाइंड है। ये है, ये है, ये है। स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है, उसको आप फॉलो करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। लेकिन इसको फॉलो करने में समय लगता है, क्योंकि हम अपने माइंड के साथ काम कर रहे हैं, माइंड को मोल्ड कर रहे हैं, माइंड का डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, माइंड का बिहेवियर चेंज कर रहे हैं बेस्ड ऑन अ साइंस। और हम ही को अपने ऊपर काम करना है। इसमें कोई दवाइयां नहीं है कि ये खा लो तो ऐसा हो जाएगा, वो खा लो तो वैसा हो जाएगा। लेकिन ये है कि जब आप ये मॉडिफिकेशन करना चालू करते हैं, तब इनके इफेक्ट्स लॉन्ग टर्म रहते हैं। ये नहीं है कि दवाई बंद कर दी तो आपका बिहेवियर चेंज हो गया। अगर आपको कोई साइकेट्रिक प्रॉब्लम है तो डॉक्टर आपको दवाई देगा, वो दवाई आप बंद कर देंगे, आपकी वो बिहेवियर वापस चालू हो जाएगी। लेकिन योग में अगर आप प्रैक्टिस करके आएंगे तो आप देखेंगे कि आपका बिहेवियरल पैटर्न चेंज हो गए, आपके हैबिट्स चेंज हो गए, आपके एटीट्यूड चेंज हो गए। और जब आपके बिहेवियरल पैटर्न्स, एटीट्यूड ये सब चेंज होने लगेंगे, तो जो थॉट्स अंदर क्रिएट हो रहे हैं वो भी चेंज होंगे। जो रिस्पॉन्स सिस्टम पहले था बाहर के थॉट्स का, वो भी चेंज होने लगेगा। और फिर आपके लाइफ में एक स्टेबिलिटी, एक कामनेस और एक अपलिफ्टमेंट आना चालू हो जाएगी जनरल लेवल पे। ओके,
तो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। पतंजलि ये बोलते हैं कि ईश्वर जो है उसको रिप्रेजेंट करता है ओम की ध्वनि, और ओम की ध्वनि अगर आप लोग सुनते हैं या चांट करते हैं तो ये धीरे 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 पूरे माइंड को जगह पे ले आती है। ओके, इसको सुनने का जो मेरा एक्सपीरियंस किया हुआ तरीका है मैं आपको वो बता रहा हूँ कि आप रात में, अगर आपको दिन में टाइम नहीं मिलता है तो रात में सोने के समय मोबाइल पे ओम के ऐप्स मिलते हैं जो कि लॉन्ग टर्म चलते हैं, टाइम का लिमिट नहीं रहता है। आप इसको लो वॉल्यूम पे सेट कर दीजिए ताकि आपके नींद को डिस्टर्ब नहीं करे, लेकिन वो साउंड उस कमरे में रहे। तो आप देखेंगे कि समय बाद, हो सकता है 2 महीना, हो सकता है 3 महीना, हो सकता है 6 महीना, आपके बिहेवियरल पैटर्न्स में जहां जहां पर भी डिस्टॉर्शन था, जहां जहां पर भी डिस्ट्रैक्शन था, वो अपने आप मॉडिफाई होके ठीक होने लगता है। कौन कौन से ठीक होते हैं जो कि पतंजलि के योग सूत्रों में डॉक्यूमेंटेड है। आप जाके वो सूत्रों को देखेंगे तो आपको मिलेगा लिखा हुआ। अगर आपको बीमारियां हैं, बीमारियां ठीक होती हैं। अगर आपको लेजीनेस है वो ठीक होता है। अगर आपको स्टुपिडिटी है, आप मंद बुद्धि के हैं तो बुद्धि का लेवल ठीक होने लगता है। आपको एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ब्रेथलेसनेस है, ऐसे करके करीबन 13 प्रकार के दिए हुए हैं। तो जो भी माइंड के इश्यूज हैं, जनरली क्या होता है कि ये इश्यूज ना बचपन में नहीं होते हैं। जब हम जीवन में आते हैं, आगे बढ़ते हैं, वर्क प्रेशर में जाते हैं, स्टडी प्रेशर में जाते हैं, दुनिया के प्रेशर में आते हैं, तो ये स्लाइट माइंड के डिस्टॉर्शन आना चालू होते हैं। एट बर्थ नहीं होते हैं, ये समय से आते हैं। तो इनको काउंटर करने का तरीका, जो फर्स्ट तरीका बताया गया है, वो है ओम का चांटिंग या ओम का लिसनिंग। शंकराचार्य बोलते थे ओम का साउंड इंपॉर्टेंट है। आप चांट करते हैं तो भी ठीक है, आप लिसन करते हैं तो भी ठीक है। तो ये आपके ऊपर में है। सेकेंड, आप ये कर सकते हैं कि मान लीजिए आप वॉक पे जा रहे हैं, कोई ऐसी एक्टिविटी में है, गाड़ी चला रहे हैं, आपके पास आधा 1 घंटे का टाइम है, उस टाइम पे हल्का सा चला के रख लीजिए, उसको सुन लीजिए उस टाइम। तो आपको फील होगा कि आपके स्कल के अंदर कुछ हल्का हल्का वाइब्रेशन चालू हुआ और कुछ मूवमेंट्स चालू हुए। ये स्टार्टिंग में नहीं होते हैं, बट कुछ समय के बाद ये चालू होता है। उसको होने दीजिए, धीरे धीरे चलने दीजिए। आपके बिहेवियर में चेंज आएगा, आपको नहीं मालूम पड़ेगा क्योंकि आपके अंदर स्लो हुआ है, लेकिन जो बाहर लोग हैं वो बताएंगे आपको, आपके फैमिली मेंबर्स, आपके फ्रेंड्स, कि तुम तो बदल गए हो, तुमको तो अभी गुस्सा नहीं आया, नॉर्मली तुमको इस बात पे बहुत गुस्सा आता है, इस प्रकार के चीजें वो लोग ऑब्जर्व करके बताएंगे आपको। तो ये जो चेंज है, अगर आपको ओम वर्केबल नहीं लगता है, जरूरी नहीं हर एक को लगे, कुछ लोग नॉन हिंदूज हो तो उनको भी डिस्कम्फर्ट है, तो कोई भी एक थॉट पे अगर आप होल्ड करते हैं अपने माइंड को, मतलब कंसंट्रेशन की एक्सरसाइज आप बिगिन करते हैं, कोई भी एक थॉट, मान लीजिए आपको एक लड़की पसंद है, उस लड़की पे आप ध्यान लगा लीजिए, उसका फोटो देख लीजिए, दिन में आधा घंटा 1 घंटा उसका फोटो देख लीजिए, तो आपका माइंड कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, आपका माइंड एक जगह आ रहा है, और माइंड को एकाग्र करने से ही ये प्रॉब्लम्स सॉल्व होने लगते हैं। अगर आपका कोई सपना है कि मेरे पास एक BMW गाड़ी होनी चाहिए, तो फाइन, उस गाड़ी का फोटो ले लीजिए, उसका मॉडल ले लीजिए, उसका दाम देख लीजिए, उसके बारे में बैठ के आधा घंटा सोचिए, तो आपका माइंड एकाग्र हो जाता है और वो काम करेगा। अगर आपको अपने सांसों के ऊपर में मेडिटेशन करनी है, तो अपने सांसों को देखिए कि कैसे वो ब्रेथ मूव इन कर रहा है, मूव आउट कर रहा है, मूव इन कर रहा है, मूव आउट कर रहा है, उस पर ध्यान लगा लीजिए। तो भी आपके ये जो भी मेंटल डिस्टॉर्शंस जो ब्रेन में आ जाते हैं, वो धीरे 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 करके ठीक होने लगेंगे। तो कंसंट्रेशन की है, ये आपके माइंड के पैटर्न्स जो डिस्टर्ब हो गए हैं उसको भी ठीक कर देते हैं। तो आप ये 3 मेथड से अपने अंदर जो भी थॉट्स आ रहे हैं, जो भी स्ट्रेस बिल्डअप हो रहा है, जो भी अनवांटेड चीजें, इमोशंस आ रहे हैं, उसको आप क्लीन कर सकते हैं, वॉश कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं।
और ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि करीबन महीना, 1.5 महीना, 2 महीना बाद आपका जो स्लीपिंग का डिसऑर्डर है वो ठीक होने लगेगा। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि अगर आप कोई मेडिकेशन लेते हैं इंसोम्निया के लिए तो उसको बंद मत करिए, उसको लेते रहिए, लेकिन साथ में ये योगिक प्रैक्टिस चालू रखिए ताकि वो साथ साथ में दोनों काम होता रहे। और एक दिन ऐसा आएगा कि आपके डॉक्टर खुद ही उसका डोसेज कम करने लगेंगे मेडिकेशन का, और आपको एक दिन मेडिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा हो सकता है। तो ले दे के सब माइंड के ऊपर है। माइंड जितना शांत है उतना आपकी लाइफ टॉप क्वालिटी की है। और कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर ये सर आप पूछिए पहले। हाँ सर, ये जो अल्फा बीटा थीटा म्यूजिक सिस्टम्स भी आते हैं यूट्यूब पे जो, और बाइलिंगुअल म्यूजिक, ये भी उसके लिए ठीक रहते हैं? देखिए, मेरे को इनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है। जो मैंने आपको बताया उसका मेरे को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, पहली बात। दूसरी बात, यूट्यूब एक बहुत ही, बोलना चाहिए कि मेरी नज़रों में डेंजरस चीज़ है। आपको कभी काम की चीज़ मिल भी सकती है, कभी कुछ उल्टा काम भी हो सकता है। लेकिन जो अपने बात कर रहे हैं वो योग सूत्रों की बात कर रहे हैं, योग के शास्त्र की बात कर रहे हैं, जो कि भारत में 2400 साल पहले लिखा गया। और योग भी भारत में ऐसा नहीं है कि 2400 साल पुराना है, योग बहुत पुराना है। ठीक से पता भी नहीं कितना पुराना है एक्चुअली उसका, वो मतलब उस समय हिस्टोरिकल डेटा नहीं है हमारे पास। कुछ लोगों का अनुमान है 10-12 हजार साल पुराना है, कुछ लोगों का अनुमान है 7,000-8,000 साल पुराना है। तो महर्षि पतंजलि ने अपने समय में जो भी ज्ञान था उसको लिखा है, उन्होंने कुछ पैदा नहीं किया है। तो ये टाइम टेस्टेड है। और हम लोग तो जानते ही हैं योगियों के सिद्धियों के बारे में, समाधियों के बारे में, तो ये सब टाइम टेस्टेड है। और ये जो आप अल्फा थीटा बीटा बोल रहे हैं, ये सब वेस्टर्न वर्ल्ड के हैं। और पता नहीं, मैं अगर मेरे को करना पड़े तो मैं जो टाइम टेस्टेड है वो करूं। Sir, I wanted to ask about this. I mean, there are a lot of people who come to me and they ask, जैसे आपने हमें बोला fear. So maybe because of our yogic practice, we are able to control, that emotion. बाकी के सारे emotion भी उसी से manifest होते हैं. But there are people, जैसे हमारा एक fear अगर आ जाता है तो वो नहीं निकलता। मतलब जितना मर्जी mind को इधर करें उधर करें, कहीं और concentrate करें। So what is our best advice for them? नहीं, देखिए ऐसा है कि if it is some fear which is at a phobia level, okay, or something which is in the psychiatric domain, illness. If fear is an illness, then I think it is better that they go to the psychiatrist and take medication, because it can lead to complications. But along with that medication, if they want to try the yogic practice, then they can do that of stabilizing their mind, removing thoughts, slowly, steadily working on that. But it will take years. It might take 10, 15, 20 years of yogic practice to be able to bring it under control. Okay. But if it is something like something normal, which you normally get, a normal fear, then that can be easily countered by bringing in the opposite thought, holding it there for some time with intensity. The so-called normal fear will disappear. You will feel courageous, happy, bold, confident. That will come. Say for example, somebody has gone for an interview. Okay, he's waiting outside the interview room, and then he has fear inside him. So there, if he's thinking of confident thoughts for 10 minutes, and then he's called in, and he walks in with those confident thoughts, so he will do far better at interview, right?
Yeah, I think you're right. The only problem is people look for a very quick solution. Yoga cannot give you quick solutions. Yoga Yeah, is something which they say can last many lives also, correct. Yeah. but it will give you a solution. I think it's a consistent practice which one must Consistent. focus That's right. on. Consistent, persistent practice without interruptions at all. With devotion. Bhakti bhav se practice karna padta hai. Right. Yeah. But you see what happens is it takes your life to an absolutely new level. You know, then you start experiencing the world in a different way altogether. Life comes to you in a different way altogether. It is like a fish being in water but not being in water. You know, it is that kind of an experience. You're not stuck up there. You're not wet. You are there in water. Correct. Thank you, sir. Welcome. Yeah. सर नमस्ते सर। हाँ संदीप, तुम पूछना चाह रहे थे। मैं ये कह रहा था जैसे हम ये आपने अभी बोला कि कोई मतलब बीमारी है या कुछ है उसको हमें मतलब कि योगिक क्रिया के थ्रू ठीक कर सकते हैं या करना चाहिए। तो सर जैसे हमने इसमें पढ़ा जैसे रमना महर्षि या अपना रामकृष्ण परमहंस, इनको जैसे बीमारी थी जब भी कोई या कैंसर या गले का, तो उन्होंने वो उस चीज को ठीक नहीं किया, उन्होंने वो उसको मतलब कि अग्री करके कि हाँ भी ये लेके जाना है, मुझे इसको ठीक नहीं करना, जबकि पावर है उनके पास उसको ठीक करने की। तो हमें भी फिर सर इस लेवल पर वाइब्रेट करना चाहिए कि कोई बीमारी आ जाए तो हमें उसको एक्सेप्ट करके अपना मतलब अगर मतलब कि कोई ऐसी वैसी मतलब डर या कुछ नहीं रखना चाहिए, ऐसा सर मतलब कुछ होना चाहिए? नहीं, देखो ऐसा है, सबकी अपनी जर्नी है। रामकृष्ण परमहंस की अपनी जर्नी है, रमन्ना महर्षि की अपनी जर्नी है, और संदीप की अपनी जर्नी है, संजय की अपनी जर्नी है ना। अब संजय अपने जर्नी में क्या करना चाहता है, उसकी आत्मा क्या चाहती है, प्रकृति वही करेगी उसके लिए। संदीप की आत्मा क्या चाहती है, प्रकृति वही करेगी उसके लिए। रमन महर्षि की आत्मा क्या चाहती है, प्रकृति वही करेगी उसके लिए। हमको नहीं मालूम कि वो दुख ले रहे हैं, क्या उनको वाकई में दुख दे भी रहा है क्या, पहली बात। दूसरी बात, अगर वो दुख दे भी रहा है, उनको कष्ट दे भी रहा है, पेन दे भी रहा है, ठीक है, तो हो सकता है कि वो अपना कुछ कार्मिक अकाउंट क्लोज कर रहे हो, हमको नहीं मालूम, है ना। ये परमहंस जी का भी वैसे ही है, रामकृष्ण परमहंस जी का, उनके पुराने क्या कार्मिक अकाउंट थे, वो उसको क्लोज कर रहे थे क्या मोक्ष प्राप्त करने के लिए, हमको नहीं मालूम। हाँ यही सर, यही चीज है ना कि हमें मालूम नहीं है ये सारी चीजें। हाँ, हमको मालूम नहीं है, ये हमारे ऊपर में है कि हम क्या करना चाहते हैं। क्योंकि जब एक योगी सिद्धियां हासिल कर सकता है तो डेफिनेटली अपनी बीमारियां भी हटा सकता है। हाँ हटा सकता है डेफिनेटली। बस यही बीमारी अगर हटाएगा तो वो अपने कर्म चेंज कर रहा है ना फिर। हाँ फिर वही कर्म चेंज कर रहा है, आई थिंक वही। सर आई हैव वन मोर क्वेश्चन। यस। जैसे जो सबसे बड़ा रीजन मुझे इसमें लगता है, समथिंग व्हाटएवर डिस्टर्ब्स इज दी, जो आपने बताया जिसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, वैराग्य, डिटैचमेंट। So here detachment means whatever people's action is, उससे हम detach हो जाएं कि you know in order to practice that detachment, you know, my personal experience, I get detached from those people also. So how to differentiate in that? No, I have not understood your question well. You want to differentiate between? So let's say there is one person, you know, they have a habit of arguing too much, or you know, they have a habit of screaming too much, you know, to prove their point. It could be our family member, it could be a friend, it could be a neighbor or a colleague. So that, you know, their things are very disturbing, the way they speak, you know, sometimes they use abusive language. So it's okay that, you know, I'm getting detached by their actions, saying that, okay, you know, this person is like that and I don't have to take it to my heart. It's his or her nature. Yeah. So one is this. Second is, you know, to practice this continuously, I feel that I'm also getting detached to that person also, you know, not liking it.
Now the third one comes, you're saying rag and dvesha and all that. So of course, No, I think you're mixing up both of them. Okay. huh. Uh, Supposing one of my relations, right, does not think of a particular thing in depth, thinks very shallow, and within 2 seconds or 20 seconds thinks of something else, changes the decision. I initially never noticed it, but then I started noticing it, and then I realized it. This is what it is all about. Okay. So now whatever comes in the first 5 seconds, 10 seconds, I quietly wait. And then after next 15, 20 seconds, something else comes. I quietly wait. Okay. So I am not allowing that particular behavior to affect me. I am accepting it as it is, right? I am not going away from it. I am not going close to it. Now that person happens to be a very close relative, okay, very, very close to it. So that relationship is at a different level. So I am able to accept that relationship as it is. Right? Are you getting me? Just say, for instance, my mother. Okay, say my mother is my mother. So she will remain my mother. She might have certain plus points, she might have certain minus points. Everybody has them. Now, if I keep on looking at the minus points and keep on distancing myself from my mother, then I am a stupid person. But if I am ignoring my mother's minus points, allowing them to be there naturally, and continuing my affection for my mother, so that is a wise choice. Are you getting me? One has to show the power of intelligence, the power of discrimination, being able to cut two things into two separate things if needed. One needs to have the power of wisdom. Key, what, when, how much, okay. Then you are able to handle life. You see, as you practice concentration, if you study the Yoga Sutras, as you practice concentration, Vivek comes. Vivek is this power of intelligence and discrimination. It will come to you naturally. And then it will grow so much that it will give you all the knowledge of the world. A Buddha becomes a Buddha when he gets Vivek Khyati. Khyati means knowledge. Vivek is the power of discrimination, discernment. So if you are not able to discern, how can you cut one thing into two different knowledges? Are you able to get me? Then physics, chemistry, maths is same for you. It's only when you have the ability to see the difference between physics, chemistry, and maths, they're different. So that power comes. Okay. Yeah, I think this again needs a lot of practice. This Vairagya is it will come. You see, if you are concentrating, Vairagya will come. If you are practicing Vairagya, concentration will come. They all move together, because they're essentially the same thing. You're not going in opposite directions. You're going in the same direction, but you're catching a different vehicle. That's all. Okay. Yeah. Thank you, sir. Welcome. Yeah. If there are no more questions, can we close? Okay, sir. Yes, sir. Thank you. Hello. Okay. Thank you so much. Thank you. God bless each one of you. Bye. Take care. Thank you, sir. Thank you, sir.